I'm Dr. Reena, and today we are having this session on the myths around weight loss. And very soon, Dr. Shikha will be joining all of us, and we'll be taking up your queries by the end of the session. So let's start today's session with what all myths people are having around the weight loss. And most of the time, with my experience, I would like to share with all of you the people who are coming to us, for the weight management or for the weight loss. So most of the time, when anybody who wants to lose weight, they try to do it by themselves. So most of the time, what we have seen that people who wants to lose weight, the first thing they do, they cut down on the intake of their food. So this is the first myth that this is cutting down the quantity of food that you are having, and with that you are going to lose weight. This is the first myth that we are going to discuss today. So what generally happens that people think that whatever you are eating, whether it is a carbohydrate, it is a fruit or a vegetable or a chapati or any kind of a protein, anything that you are having, that is going to give you some sort of a weight gain. But this is not right. So our body, we all know that our body need lot of nutrition. Our body need carbohydrates, our body need protein, vitamins, fat, and the only source through which you can have all these nutrient is the food. So it is very important to have a right choice of your food when you are having your meals. So first thing that I would like to clear today, that if you want to lose weight, there is no need to cut down on the quantity of food that you are having. Rather, you should focus on the quality of food that you are having. And when we are talking about the quality of food, so we are talking about the food which is based on your phenotype, which is based on your body type. So Dr. Shikha has also joined us for the session. So hi, Dr. Shikha. So we are discussing about the first myth, which is around, like, most of the time it happens that when people wants to lose weight, the first thing they cut down on the quantity of food that they are having. And with that, people, they have a lot of cravings, and it leads to a lot of stress also. And they think that the moment you start eating healthy, it is very stressful. So this is something that we are discussing today. So if you can just throw some light on that. So I will first I'll give you an overview about see, most of you know that I'm a dietitian and a nutritionist, and most people know me for weight loss. But let me tell you about my story first so that you understand whatever answers I'll give, what is it based on. So basically, I'm not a dietitian or a nutritionist. I'm a medical doctor. And I trained as a medical doctor, and I was working in the department of cardiology in GP Pant Hospital, where I was posted in the ICU. And every day I used to see patients die on the table, because जब तक वो patient ICU तक पहुंचता है, आपको पता है GP Pant Hospital is close to दरियागंज, तो वो ट्रैफिक में आते आते पेशेंट अपना दम तोड़ देता था. And that really affected me, because हार्ट अटैक इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. वो खाने पीने और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. एंड आई टू फील मिजरेबल फीलिंग कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट मर रहा है. मतलब उसके खाने पीने का किसी ने उसको बताया नहीं, उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट किसी ने बताई नहीं, एंड पेशेंट ने दम तोड़ दिया. बट द वर्स्ट वाज व्हेन वी यूज्ड टू सेंड द पेशेंट होम. हम तो उसको 11 दवाइयां लिखते थे, बट उस पेशेंट को कभी एजुकेट नहीं हम करते थे कि 11 दवाइयां आपकी जिंदगी बचा सकती है, बट आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देगी. आपकी जो डिजीज है वो प्रोग्रेस करती रहेगी. बिकॉज वी ऑल स्टडी फार्माकोलॉजी, तो हमें पता होता है कि हर दवाई का रिजल्ट क्या है. तो वो आपको मरने नहीं देगी, बट आपको हीलिंग नहीं देगी, आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगी. सो विद दैट आई थॉट कि भाई आई हैव टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली पेशेंट को ठीक कर पाए, हीलिंग दे पाए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में काम करे, रिहैबिलिटेशन में काम करे, हार्ट अटैक के बाद कैसे अपने हार्ट को हील करना है, फ्रैक्चर के बाद कैसे हील करना है,
कैंसर के बाद कैसे अपने को वापस लाना है, और कैसे वो वापस ना आए, वो बीमारी वापस आपको नहीं अटैक करे, उसके रूट कॉज पे काम करें. दैट इज व्हाट आई थॉट एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग एट सॉल्यूशंस. तो जितना मैंने सोल्यूशन ढूंढा, मैंने यूनानी मेडिसिन थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा होम्योपैथी पढ़ा, थोड़ा सा चाइनीज मेडिसिन पढ़ा, और सब एक ही चीज कह रहे थे. एंड व्हाट दे वर सेइंग वाज दैट द बिगेस्ट मेडिसिन, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है, वो खाना है. एंड दैट शॉक मी बिकॉज एज डॉक्टर्स यू डोंट थिंक मच अबाउट फूड. आपको लगता है पेट भरना है, एनर्जी चाहिए, खाने का उतना लिमिटेड रूल. सो वी रियली रियली अंडर वैल्यू फूड. हमारे लिए खाने का कोई महत्व नहीं है एज डॉक्टर्स, एक्सेप्टिंग कि पेट भरना है और स्वाद है. सो व्हेन दिस आई रेड अक्रॉस 4 पैथीज, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, दैट फूड इज मेडिसिन. आई सेड फूड में ऐसा क्या है कि वो मेडिसिन इतनी बड़ी चीज बोल रहे हैं. फूड इज मेडिसिन. एंड देन इन वैदिक स्टडीज, यू नो व्हाट फूड इज कॉल्ड, ये बॉडी को क्या बोलते हैं. यू विल बी शॉक टू नो कि इस शरीर को एक्चुअली उसके लिए क्या टर्म है. शरीर के लिए जो टर्म है वो है अन्नमया कोश. यानी जो कोश, जो बॉडी अन्न से बनी है, खाने से बनी है. एंड दैट हिट मी हार्ड. दैट वाज द टाइम व्हेन द पेनी ड्रॉप्ड कि ओ, जो शरीर पूरा का पूरा तो खाने से बना है, तो लॉजिकली खाना ही इसको ठीक कर सकता है. दवाई हम सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे और जिंदगी बचा सकते हैं दवाई से, बट ठीक नहीं कर सकते शरीर को, बिकॉज शरीर को ठीक करने वाली चीज खाना है. दैट्स वेयर आई डिड अ डीप डाइव इनटू न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन में जब घुसे तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स नजर आई. सबसे पहले तो ये कैलोरी थ्योरी थी, इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग. और जब मैंने उसमें डीप डाइव किया तो समझ आया कि कैलोरी थ्योरी को जो ओरिजिनेट करने वाले हैं वो डॉक्टर नहीं है. उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी. वो केमिस्ट है जो कि स्टीम इंजन पे और केमिस्ट्री लैब पे काम कर रहे थे. तो उनको लगा कि जैसे मशीन काम करती है, जैसे आप पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चलती है, कोयला डालते हैं तो इंजन चलता है, तो खाना डालते हैं तो शरीर चलता है. दैट पर्सन हैड नो आइडिया अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, एंड खाने से शरीर बनता कैसे, हाउ इज द बॉडी, शरीर का निर्माण कैसे होता है. तो द फर्स्ट थिंग विच आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 25 years back, calorie theory is a biggest roadblock to health. Calorie theory is a myth. और मैं आपको एक अभी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि कैलोरी थ्योरी कितनी नुकसानदेह है. अगर मैं किसी को बोलती हूँ आपको हेल्दी रहने के लिए लो कैलोरी फूड खाना है, और फिर उसके सामने 2 चीजें रखती हूँ, एक बोल में बादाम, खजूर, किशमिश, वॉलनट, मूंगफली, इसमें तो बहुत कैलोरी है. और दूसरी तरफ रखती हूँ 0 कैलोरी कोक, 0 कैलोरी पेप्सी, और कहती हूँ अब आप क्या खाएंगे. तो कहेंगे कैलोरी आप कह रहे हैं लो है तो मैं तो पेप्सी लूंगा, मैं तो कोक लूंगा, 0 कैलोरी. यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है. एंड दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटायर इंडस्ट्री, जो कैलोरी को, गलत धारणा को स्टूडेंट पेशेंट्स को बताते हैं और पेशेंट्स को गुमराह करते हैं. नाउ व्हाई आई फील सो स्ट्रांगली, बिकॉज हमारे कई पेशेंट्स ने इस तरह से अपनी बॉडी को डैमेज किया. डायबिटिक्स, एस्पार्टेम ले रहे हैं, वो केमिकल है. लो कैलोरी शुगर फ्री कस्टर्ड्स एंड जेलीज एंड चॉकलेट्स एंड मिठाइयां बन रही हैं. दिवाली पे शुगर फ्री की बनी हुई मिठाइयां मिलती हैं. वो केमिकल आपकी बॉडी में क्या डैमेज कर रहा है किसी को बताया नहीं जाता. तो आज की डेट में अगर आप कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई वुड से कैलोरी फ्री नहीं, केमिकल फ्री. प्लीज गो केमिकल फ्री, नॉट कैलोरी फ्री. क्योंकि बादाम में जो कैलोरी है वो अच्छी है, वो न्यूट्रिशन है. अखरोट में, मूंगफली में वो न्यूट्रिशन है. आप न्यूट्रिशन को नहीं त्याग सकते. आपको क्या त्यागना है, दोज फूड जो आपकी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करके आपको फैटी बना रहे हैं. तो वो कैसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं और आपका वजन बढ़ा रहे हैं और आपकी विसरल ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं और आपको हार्ट अटैक दे रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, आपकी फैटी लिवर कर रहे हैं. क्या है वो फूड्स?
केमिकल ऑयल्स, जिन ऑयल्स की प्रोसेसिंग में केमिकल इस्तेमाल हुआ है, जो केमिकल्स आप शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स में खा रहे हैं, जो चिप्स में आप खा रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न कि उसमें क्या कैलोरी लिखी है, बट उसके पीछे प्रिजर्वेटिव क्या है, आर्टिफिशियल कलर कितना है, आर्टिफिशियल टेस्ट मेकर कितना है, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे मानने में जंक फूड कैलोरी से नहीं जंक बनता, जंक फूड बनता है केमिकल से जंक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जंक फूड इज नॉट जंक बिकॉज ऑफ कैलोरी, जंक फूड इज जंक बिकॉज ऑफ केमिकल इन द फूड। जितना आप केमिकल फ्री खाना खाएंगे उतना आपकी बॉडी में नॉर्मल वेट आएगा, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आएगा। सो लेट मी टेल यू कि ये जो वेट हम कहते हैं कि भाई वजन कम करना है तो हमें तेल कम खाना चाहिए, चीनी कम खानी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, अच्छी बात है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई वुड रादर प्रेफर कि हमें क्या खाना चाहिए। हमें वेजिटेबल स्मूदीज पीनी चाहिए, हमें फ्रूट चाट खाना चाहिए, हमें अलग अलग तरह के मिलेट्स खाने चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंशन की डेंसिटी ज्यादा होती है। हमें रिफाइंड पास्ता, रिफाइंड पिज्जा, रिफाइंड ब्रेड, रिफाइंड बर्गर, रिफाइंड चीजों से दूर रहना है, क्योंकि वो केमिकल में भी है और रिफाइनिंग से उसकी सारी न्यूट्रिशन बाहर आ जाती है। देयर इज नो न्यूट्रिशन, नथिंग लेफ्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैंने ये पूरी कंपनी को आधारित किया। सो माय कॉन्सेप्ट वाज नॉट कि किसी को 5 किलो कम करना है, किसी को 4 किलो कम करना है, वो तो हो ही जाएगा। आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, आप सही उसको सही चीजें देंगे तो बॉडी की अपनी वो इंटेलिजेंट मशीन है, वो अपने आप अपने को ठीक करना शुरू कर देगी। बट जब हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं कि अच्छा अब हमें वजन कम करना है तो लो कैलोरी फूड्स खा रहे हैं, डाइट कोक पी रहे हैं, हम चिप्स हमें पसंद है, पैकेट चिप्स हैं तो हम पैकेट चिप्स थोड़ा खा लेंगे और हम ड्राई फ्रूट्स बंद कर देंगे। So you can imagine polycystic ovarian disease, cancer, diabetes, fatty liver, high cholesterol, high ESR, high C-reactive protein, heart attacks, lung infections, osteoporosis. ये सब देन है because of this misinformation. आपकी जोड़ों में दर्द है, आप एक गोली मल्टीविटामिन की खा लीजिए। आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप एक और गोली खा लीजिए। आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरी है तो आप एक और गोली खा लीजिए। तो जब तक हम रूट कॉज ठीक नहीं करेंगे कोई बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। एंड रूट कॉज ठीक करने के लिए जैसे मैंने कहा कि वेदों में बॉडी को क्या खा, आई एम बेसिकली एन एलोपैथ डॉक्टर, आई एम बीइंग वेरी क्लियर। मैंने आयुर्वेदा में मेरी डिग्री नहीं है, न्यूट्रिशन में भी कोई डिग्री नहीं है, बट बिकॉज आई वॉज एन एलोपैथ डॉक्टर एंड आई सॉ डेथ्स, मुझे ये क्लियर हो गया कि पेशेंट को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन से ही शुरुआत करनी है, फूड एज मेडिसिन से ही शुरुआत करनी है। Otherwise, I'm doing half a job. The full job is not being done. क्योंकि the moment I hit that word, वेदों में जो लिखा था, अन्नमया कोश, अन्न से बढ़ने वाली शरीर, यानी शरीर जो अन्न से ही सिर्फ बना है। Now look at what is on your plate. And then see कि आप वजन क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में नेचुरल एलिमेंट्स कम है, केमिकल एलिमेंट्स ज्यादा हैं, वो आपके लिवर को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, वो आपके डाइजेशन को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो ये जितनी बीमारियां हैं इंक्लूडिंग कैंसर, ये इसी की देन है। सो नेचुरल फूड्स की हम बात करेंगे, हम पर्सनलाइज्ड फूड्स की बात करेंगे, एंड आई वुड इनवाइट डॉक्टर रीना इफ डॉक्टर रीना इज देयर, अदरवाइज आई बट आई टेल यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज कि आपका शरीर खाने से बना है। आपके शरीर की जो एक पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जिसको हम मेडिसिन में डीएनए कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, आयुर्वेद में बॉडी प्रकृति कहते हैं, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जितना आप अपने शरीर के साथ उससे उसकी अलाइंड फूड खाएंगे उतना आपकी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपकी बॉडी बैलेंस में आएगी आपके बाल अच्छे होंगे, आपका स्किन अच्छा होगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपका वजन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज द बॉडी नोज इट्स नॉर्मल वेट। The body is at its normal weight normally unless we short circuit the digestion.
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग ओजेम्पिक खा रहे हैं और हमने आपको कोई आयुर्वेदा का ओजेम्पिक दे दिया। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैदिक न्यूट्रिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, रियल न्यूट्रिशन, खाना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर फूड्स, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, which are functional foods. So the first step is first diagnosis of your body, कि आपकी शरीर बना किस तत्वों से है। बिकॉज हर बॉडी का डीएनए सेम नहीं होता, और बॉडी का जब डीएनए सेम नहीं होगा तो हर चीज आपको सूट कैसे करेगी। कुछ लोगों को दूध बिल्कुल नहीं सूट करता, फिर भी वो अपना दूध पीते रहते हैं, फिर फैटी लिवर हो जाता है, फिर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को गैसी फूड सूट नहीं करता, जैसे सफेद चावल बहुत गैसी होता है, तो वो बट खाते रहते हैं, फिर गैस बढ़ती है, फिर गैस उनके चैनल्स को ब्लॉक करती है, फिर हेडेक होता है, लिवर में फैटी लिवर हो जाता है। सो बट इट्स नॉट पेशेंट्स फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट दैट इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमने कभी सिखाया ही नहीं कि अपने शरीर को कैसे पहचाने और शरीर के मुताबिक कैसे खाएं। हमारी नानी दादी के लेवल पे, आई मीन इफ यू लुक एट योर ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स, वो अपने शरीर को समझने में दे वर क्वाइट एडवांस्ड। वो कहते थे कि नहीं, मुझे खट्टा ज्यादा सूट नहीं करता, मुझे दूध की बनी चीजें सूट नहीं करती, मुझे दही सूट नहीं करती। पुराने लोगों में वो कभी भी रात को दही नहीं खाते थे, कभी भी नहीं खाते थे, बिकॉज दे वर क्लियर दैट जो वेदर है और जो खाना है और जो शरीर है, ये तीनों कनेक्टेड है। द वेदर, द फूड एंड द बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, एंड इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दैट इंटरकनेक्शन तो आपको सारी बीमारियां हो जाएंगी। गर्मी में आप, and a lot of people, in fact I would say even I am to blame for that, when we became doctors we started laughing at all these ancient sciences. हमें हंसी आती थी कि ये पता नहीं अनसाइंटिफिक लोग कैसी बातें करते हैं, because we have studied modern science. But इंसान सीखता कब है? जब वो फेल हो जाता है, when the person fails, when I was seeing my patients and my patients were not getting better, and you feel sad because आप तो इतना पढ़ लिख के आए हैं, आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, and you care about your patients, then you start looking at कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, where am I lacking, and I realize food is where I'm lacking. हम खाना, हम उसको प्रॉपर साइंटिफिक न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, हम एक कॉपी पेस्ट सिर्फ एक डाइट शीट उसको दे देते थे, जो हमारी डाइटिशियन डिपार्टमेंट देता था, एक प्रिंटेड शीट, ये खा लो आप, वो भी वेरी कैजुअली कि खा लेना। So what I'm trying to say is that today, when we talk about healing, when we talk about superfoods, when we talk about nutrition and genetics, when we talk about epigenetics, when we talk about functional nutrition, functional medicine, ये क्या है? ये basically ancient sciences हैं in a new packaging. So if you understand your body, if you are able to do a assessment कि आपकी body, जैसे आपकी जन्म पत्री होती है, जैसे आपका डीएनए सैम्पलिंग होती है, यू शुड नो योर बॉडी। वंस यू नो योर बॉडी, आपको सब समझ आएगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। इन माय बॉडी टाइप थोड़ा मेरा कफा है, एंड पूरे बचपन में मुझे साइनस रहता था, साइनस ब्लॉक, बिकॉज खूब दही खाई, रात को भी दही खाई, नानी मना करती थी, दादी मना करती थी, बच्चे सुनते नहीं है, खूब खा रहे हैं दही। इट वॉज ओनली लेटर आई started noticing a connection कि जब मैं दही खाती हूँ मेरा साइनस हो जाता है, and gradually when I got deeper and deeper I realized winters में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, summers में कम होता है, and when I stopped curd a lot of my symptoms vanished, एकदम ठीक हो गया। That's why my interest started rising in the concept of body typing, nutrition typing and weather typing, and this is the integrated methodology which we are using at our company. Here I want to say that our company recently has now become a part of Ranfort Wellness, which is a very larger healthcare company. तो जहां पे हम कैंसर न्यूट्रिशन पे भी काम कर रहे हैं, किडनी न्यूट्रिशन, रीनल न्यूट्रिशन पे भी काम कर रहे हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस, पॉलिसिस्टिक ओवरी, मेनोपॉज, हाइपोथायरॉइड, ओबेसिटी, लिवर, फैटी लिवर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब डिजीज पे काम कर रहे हैं थ्रू न्यूट्रिशन एंड थ्रू सुपर फूड्स। व्हेन आई से सुपर फूड्स, तुलसी है, आंवला है, अश्वगंधा है,
some of these herbs are there to balance the body. So when I'm talking about why a doctor came into this field, because the doctor was very sad that I'm not doing justice to my patients. I'm not giving a full treatment. मैं आधा ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मैं दवाई जरूर लिख रही हूँ, दवाई से इनिशियल इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, बट पेशेंट ठीक नहीं हो रहा. द पेशेंट आई कैन नॉट से कि ये ठीक हो रहा है. एंड माई पेशेंट्स केयर्ड अबाउट मी, आई केयर्ड अबाउट माई पेशेंट्स. तो मुझे दुख होता था कि ये हर बार फीस भी देते हैं, बट ट्रीटमेंट इनका फुल क्यों नहीं हो रहा. सो न्यूट्रिशन वॉज द मिसिंग पीस, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन वॉज द मिसिंग पीस. जैसे आजकल लोग गर्मी में भी अंडा खाते हैं, एंड पीपल लाफ, क्या फर्क पड़ता है, संडे हो कि मंडे आप रोज खाएं अंडे. बट द रियलिटी इज अंडा का हीट होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, केसर की तासीर गर्म होती है. आप केसर गर्मी में नहीं दे सकते, छाले होंगे. तो ये कॉन्सेप्ट्स आर grounded in wisdom. These concepts are grounded in thousands of years of wisdom. So what I did is, as a doctor trained in science, I realized ना आयुर्वेदा खराब है, ना एलोपैथी खराब है, ना न्यूट्रिशन खराब है, और ना वो परफेक्ट है. दे आर नॉट परफेक्ट साइंसेस. तो हमने उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस लिए. एलोपैथी से क्या लिया? ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट के बिना हम कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू करेंगे. आयुर्वेद से क्या लिया? पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, बॉडी टाइपिंग, eating according to season, eating according to science, eating according to time of the day, eating according to food combinations. और मॉडर्न न्यूट्रिशन से हमने क्या लिया? the concept of, not the calorie concept, which is all wrong, the concept of amino acids, essential fatty acids, recommended daily dietary allowance, प्रोटीन कितना, विटामिन कितना, मिनरल कितना, एसेंशियल फैटी एसिड कितना, वो हमने लिया. और इन तीनों को जोड़ के हमने एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया, द वैदिक प्रोटोकॉल. सो इट इज अ लिटिल ऑफ आयुर्वेदा, लिटिल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, अ लिटिल बिट ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन, बट नॉट द बैड पोर्शंस, नॉट द इररेलेवेंट पोर्शंस. तो उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाल के उसके ऊपर हमने क्या चीज डाली, विच एज अ डॉक्टर आई यूज टू ऑलवेज वंडर. हमने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया, पेशेंट ने 2 महीने फॉलो किया, तीसरे महीने अब वो मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है, मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है. और हम उसको फिर 6 महीने बाद पेशेंट को मिल रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं आ रहे या उतने नहीं आ रहे. तो उस टाइम मैंने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ी कि कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहते हैं आपका पेशेंट बेहतर हो और ठीक हो, तो कंप्लायंस मॉनिटरिंग आप करें, यानी उसको फोन करके चेक करें आपने फॉलो किया नहीं किया, आपने कितना फॉलो किया, क्या आपको दिक्कतें आई, आप दवाई चेंज करनी है, खाना चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन करनी है. ये रिसर्च मैंने पढ़ी कि अगर आप ये ऐड करें, रिजल्ट्स गो अप बाय 80%. तो वो वाला फैक्टर हमने अपने सिस्टम में ऐड किया कि जो आपकी न्यूट्रिशन कोच है, वो हर 2-3 दिन में आपको कॉल करके आपसे कंप्लायंस लेंगी कि आपने फॉलो किया नहीं किया. एंड बिलीव इट और नॉट, दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस मंत्रा, बिगेस्ट. क्योंकि हम बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन प्लान्स बनाते हैं, हमारे डाइटिशियंस, बट अगर कोई फॉलो ही ना करे तो उसका फायदा क्या है? वो तो एक पर्चा है आपकी जेब में. सो दिस कंप्लायंस कोचेज इज व्हाट वी स्टार्टेड बिल्डिंग इन अ सिस्टम, कि आपको कॉल करना है, पेशेंट से बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम सुन के मॉडिफिकेशन करना है. एंड दैट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नॉलेज इज देयर, द रिफाइनमेंट ऑफ all 3 pathies is there, but I would say yes, that is knowledge. बट उसको इम्प्लीमेंट कराना, जो इम्प्लीमेंट हमारे कंप्लायंस कोचेस, न्यूट्रिशन कोचेस करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है. जैसे आपके पास एक बहुत खूबसूरत घर का आर्किटेक्चरल का प्लान आ गया, आपने बेहतर से बेहतर एक आर्किटेक्ट हायर किया, उसने खूबसूरत प्लान आपको दिया, उसने आपको पूरा बजटिंग दी, सब कुछ दिया, बट आपका कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं अच्छा, तो क्या बनेगा घर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी ऑल कम टुगेदर, the knowledge part, the science part, the compliance monitoring part, and fundamentally the recipe part. मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, बट अगर रेसिपी नहीं है आपके पास, आप बनाएंगे कैसे उसे?
तो ज्ञान by itself is not important. Implementation and compliance is also very important. And that is what we are very pragmatic and realistic in our organization, कि हमें 1000 चीज नहीं बतानी कस्टमर को, क्लाइंट को. हम जो भी चीज बताएंगे, एक तो पर्सनलाइज होनी चाहिए, कस्टमाइज होनी चाहिए, एंड दूसरा उसको फॉलो करने में मदद करेंगे, so that the person actually benefits rather than we giving a lot of gyan and the customer not following anything. So that is how this program works. And I would say ki the God is very kind because of our clean intentions. हमें बहुत इस फील्ड में I would say लोगों ने पसंद किया. And a time came when the ex-prime minister, not the current one of the ex-prime ministers was our client, and 5 chief ministers were our client. और ये इसलिए मैं नहीं कह रही कि वो प्राइम मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर हैं या थे, इसलिए क्योंकि उनके लिए सारे दरवाजे खुले थे. देश का बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, विदेश का बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल, बट वो फिर भी उन्होंने हमें चूज किया बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रोटोकॉल विच वी डेवलप्ड. और उससे हमें कॉन्फिडेंस आया कि इस प्रोटोकॉल को हमें फर्दर सोसाइटी में ले जाना है through a team of nutritionists, through a team of Ayurvedic doctors, through a team of health experts. And that is the program. So जब मुझे कहता है कि डॉक्टर शिखा मैं ग्रीन एप्पल खाऊं कि रेड एप्पल खाऊं, आई वुड से आप कुछ भी खा लो. दैट इज कैलोरीज पे मत जाओ. गो बाय योर बॉडी टाइप एंड गो बाय द फैक्ट कि आपके साथ एक कंप्लायंस कोच होना चाहिए जो आपको फॉलो करा पाए. सो बीइंग प्रैक्टिकल and executing good plans is more important than just getting a good plan, because बहुत सारे लोग हैं, उनमें बहुत सारे ज्ञान होता है, but nothing is implemented, nothing is followed. That's also not good. And गलत चीजों को फॉलो करना भी गलत है. Like मैंने कहा, एक तरफ आप कोक की बोतल रखी 0 कैलोरी की, दूसरी तरफ आप ड्राई फ्रूट्स का एक बोल रखें, और अगर आप कैलोरी कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेंगे तो आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आप वो केमिकल खाएंगे. So that is very important, that wisdom is also very important. So I would like to thank all of you for coming for this session. We hold these sessions regularly. One, to educate people because there are a lot of myths and confusions in the society. B, to also help you, guide you in the right direction. And my doctors and my team members, all of them are here to help you out. So in case any one of you are interested to sign up for the program, you're more than welcome. And the program begins with initially assessment by the Ayurvedic doctor of your body type. And then the nutritionist takes over. She's the compliance coach and she's also the nutritionist. And then they are monitored by a team of doctors and myself. And that's how we monitor the patients and the results. So that is the whole system what we have built. And that system is what we are trying to take to everybody, whether the person is wanting to lose weight, or whether it's hypothyroid, or whether it's cancer or kidney failure, liver failure, fatty liver, जो भी आपकी बीमारी है, nutrition, like I said, is the supreme medicine. Without nutrition, nobody can get healthy. And with nutrition, if you follow it well, आपकी बीमारी भाग जाएगी. Of course, I'm saying again, allopathy is important. But you have to understand that ये सारे साथ चलते हैं. You cannot do one or the other. They work together. If somebody is having a asthma attack, तो उसमें उस टाइम न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा. It's something which will take time. उस टाइम आपको हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट कराना है. But once you're out of the hospital, उस टाइम आपको न्यूट्रिशन को सीरियसली लेना है, so that the attack doesn't come back. So with that, I'd like to thank you for coming in for this session, and I welcome all of you, whoever is interested, to come and join our session.